Hello, Seno, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, we'll start within 5 more minutes, okay? Okay, we'll just start. I have to post one message on the group so that people will gonna join, okay? Just we will start within 1 minute. Okay, yesterday I finished one unit, second unit, and today we're gonna start with third unit. Okay, so basically जो second unit था, it deals with all the rules and regulation. Almost I finished all the rules, regulation related to which can be useful for the industrial purposes. CRZ भी cover किया, then insurance policy भी cover की, EI notification और amendments क्या क्या थे वो भी cover किए, public liability insurance एक्ट वाला भी कवर किया, पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फॉरेस्ट एक्ट कवर किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कवर किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट, फिर वो क्या करती है बॉडी, ये सब हमने कवर किया लास्ट लेक्चर में. ओके, योर सिलेबस, हाउ इट इज रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल I want to get I want to give that idea to you how it is going to be related. Okay, so first
वी हैव सीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि एनवायरमेंट के मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है और किस फैक्टर पे वो बेस करता है. देन वी हैव सीन द पॉलिसीज एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट. जो भी एनवायरमेंट मैनेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी पॉलिसीज आती है, दैट वी हैव सीन in last unit. Okay, because if we have set up environmental management for any type of industry, बस उतना ही हो रहे तो it is not necessary that it can be regulated for long period of time. There should be a body who is going to monitor whether you are managing the environment or not. There should be rules, regulation. According to that, if their ovulation has been done, then it should be penalized. Usme penalty lagni chahiye, right? So this type of the things we have covered up to now. Now, what is the next policy ho gaya, management bhi ho gaya, but there are some hazards and disaster managements also there. Okay, here in this unit we'll see natural and industrial hazards. Industrial hazard mein next lecture mein cover karungi. Then in fourth lecture I'll cover ISOs. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग आते नहीं है. तो प्लीज आप रहिए प्रेजेंस इस यूनिट के लिए. मेजर फोकस इसी पे रहेगा, क्वेश्चनरीज भी इसी पे आएगी, और इसीलिए आप ये कोर्स कर रहे हो, इसीलिए डिप्लोमा आप कर रहे हो, इसी एक कोर इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए, है ना. एंड देन लास्टली we'll see EI and LCA modeling and tools related to that. Lastly, the environmental economics, which is a very small portion of the syllabus. But ये जो fifth unit है बहुत important है. So be present for this unit as well as for the next unit, that is industrial accidents, industrial hazards, and what are the mitigation, what will be the management planned by the industry, और कैसे हम कौन सी टेक्निक के हिसाब से उसे assess करते हैं और कौन सी टेक्निक को लेकर हम उसे मिटिगेट करते हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट दैट you must present in a next means अब पूरे यूनिट में प्रेजेंट रहो, बट नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. So let's start with the unit 3, which deals with the environmental hazard and disaster management. See, hazards and disaster are two different things. That's why most of the people get confused. Yes, hazard and disaster is almost same. Now we'll see one by one and how it will going to be managed. First, we'll see a brief introduction related to this. Environmental hazard and disaster management focus on identifying, mitigation, and responding to the extreme physical event, natural like earthquake, floods, drought, landslide, volcano eruption, and all of the stuff. That are the natural events. And anthropogenic means man-made, that is industrial accident, oil spill, fire, emission of gases, emission of microorganisms that threaten the human life, property, and ecosystem. जहां जहां भी इंसान की जिंदगी को खतरा है, उसकी प्रॉपर्टी को खतरा या एनवायरमेंटल इकोसिस्टम को खतरा है, जिस भी चीज से, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, है ना. आई ऑलवेज सेज मैनेजमेंट इज बेस्ट, मैनेजमेंट बेस्ड ऑन टू द वन रूल दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. फर्स्ट आइडेंटिफाई इट एंड प्रिपेयर इफ द इंसिडेंट्स हैपन. So mitigation strategies should be pre-planned. That's the thing. For this unit comes to your syllabus. Effective management involves organizing resources to reduce risks. First of all, reduction in risks, improve preparation, and manage recovery. Okay, this is the thing. आप सबसे पहले रिस्क को कम करिए. अगर आप आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छे हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है सक्सेसफुली, देन यू मस्ट मिनिमाइज द रिस्क, you must minimize the chances of accidents to be happen. Okay, then prepare for it. Improve your preparation day by day because it's the important thing. अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ कोई अगर केमिकल फैक्ट्री है और वहां पे बॉयलर है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया इसका टेम्परेचर 1000 जाना ही जाना है, और आफ्टर सम टाइम जो बॉयलर की कोटिंग है वो बस्ट हो जाएगी. आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ बाबा ये 100 दिन में बॉयलर खराब होने वाला है और ये बस्ट होने वाला है, तो आपने उसको मेंटेनेंस के लिए
ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम। अब उसको आपने अब आपने उसका मैनेजमेंट प्लान शुरू कर दिया कि हाँ डेली तो मॉनिटरिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गया 100 दिन में बॉयलर फटने वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उस बॉयलर का जो है उससे आप 80 डेज के बाद या 75 डेज के बाद में every alternate days or every according to your plan strategies, every after 2 days 3 days you are going to monitor it. These are the preparation. फिर अगर इन केस कभी ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है और बॉयलर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इट्स लाइफ शेल विल बी मिनिमाइज, इट विल गेट मिनिमाइज, क्योंकि प्रोडक्शन आपने जो एनालिसिस किया है उसका एलसीए निकाला है, लाइफ साइकिल असेसमेंट जो निकाला है वो 100 डेज का निकाला है बॉयलर का। बट अगर वो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो स्टैंडर्ड एलसीए निकालते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हाँ फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो है, केमिकल इंडस्ट्री वो सिर्फ 8 घंटे रन करेगी, जिसमें से 8 ही घंटे बॉयलर हीट अप होगा, ऐसा आपने कैलकुलेट करके स्टैंडर्डाइज निकाला है, तो उसकी लाइफ आपने 100 डेज निकाली है आफ्टर अप्लाइंग लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। बट अगर डिमांड बहुत ज्यादा है केमिकल्स की, है ना, जो आपकी केमिकल फैक्ट्री में कोई भी एक्सवाइजेड केमिकल बन रहा है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सो व्हाट विल गोना डू, यू आर चार्जिंग, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा ओवर टाइम फॉर टू योर वर्कर्स, okay, they're ready to work according to your terms and condition, and you are working with that boiler more than 8 hours a day in a day। ठीक है, वो अब 10-10 12-12 घंटे चल रहा है, so what will gonna happen, yes, that life, a says life will get minimized, no it will not going to burst in 100 days, it will burst prior to that। ओके वो एलसीए में भी हम देखेंगे कि अगर लाइफ कम होती है तो क्या, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर भी तो रहना है। अगर इफ एनी चांसेस मॉनिटर नहीं हो पाया, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, सम हाउ accident will going to be happen, how do you gonna prepare for that? ओके तो बॉयलर के आसपास आपको ऐसी शील्ड लगानी पड़ेगी कि जो अगर बॉयलर बर्स्ट भी हो जाए, उसमें से अगर गर्म पानी लीक भी हो जाए, वेपर्स लीक भी हो जाए, तभी वो एक भी फेटल ना करे, एक भी इंडस्ट्री का वर्कर वहां पे फेटलाइज नहीं हो। सो दैट इज नथिंग बट अ प्रिपरेशन। नाउ द मैनेज द रिकवरी आफ्टर बस्टिंग द बॉयलर। वो बॉयलर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो जो आपने एरिया रिस्ट्रिक्ट किया वहीं तक पानी जाएगा, इट विल गोइंग टू बी हैम्पर टू द अदर मैन्युफैक्चर इन इक्विपमेंट, okay, or it will going to be hamper some kind of machinery which contains already chemicals which is very hazardous. If it come in contact with that vapor, then it may react and emit some gaseous pollutant which is very hazardous। So ऐसा हमें उसके बाद में एक्सीडेंट होने के बाद में रिकवरी भी करना जरूरी है ना, वो केमिकल मैनेजमेंट की, फिर हाँ बॉयलर के पास में हम वो सारे इक्विपमेंट्स ना रखें, वो सारे केमिकल्स ना रखें, ऐसी जगह से उन सबको दूर रखें। दीज आर द प्लान्स प्रिपरेशन ऑल ऑफ द स्टफ। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, एंड वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू गेट डन। अभी कितने लोग हैं? ओके, 4 आर देयर। So I would like to ask if have you ever done this type of whatever I have explained disaster plan ever in your working culture? Have you कहीं कोई तो across हुआ होगा ना at a some period of time? Yes, you have across with the some management environmental management plan. Have you gone for this? Would you please give me one of the example from your industry? That would be better for to others to understand this thing. Okay, कुछ किसी ने कुछ किया है या किसी के कांटेक्ट में किसी को पता है? एनीवन? नोप? पता है किसी? नहीं पता है, ओके, गई नहीं हो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तक, है ना? Okay, no problem. So we'll move toward the next, that is environmental hazard and are phenomena that threaten society and environment, becoming disaster when they exceed the community ability to cope. Okay, कब hazards तो रोज हो रहे हैं, है ना? But they have a minimum potential to impact anyone, human, property, or ecosystem.
These are the three major factors where the management comes. If that would be get threatened, okay, in any kind. So वो रोज हो रहे हैं पर मिनिमम हो रहे हैं, बट कुछ बड़ा होता है, बहुत ज्यादा फेटल्स होने के चांस, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है या ऑलमोस्ट इकोसिस्टम डैमेज हो रही है, so that would be threatened, that would be considered as a hazard, that would get disaster, that would be converted in, that hazard get converted into the disaster. Okay, that उससे कम्युनिटी की एबिलिटी होनी चाहिए कोप अप करने के लिए. That's the thing. Okay, a global urbanization and climate change increase the frequency and impact of these catastrophes on the life and infrastructure are growing. Okay, ये तो सभी को पता है, ये सारे हजार्ड्स क्यों हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन. ओके, दिस इज द major reason for the disaster to be happen. Climate change तो anthropogenic है. No need to tell, I have already explained lots of things related to the climate change. Now coming towards the difference between hazard and disaster. See, hazard is a potential threat. ठीक है, वो सिर्फ एक थ्रेट है. डिजास्टर द एक्चुअल इवेंट कॉजिंग द वाइड स्प्रेड लॉसेस, दैट इज नथिंग बट अ डिजास्टर. हजार्ड से क्या होगा, सिर्फ खतरा जैसे कहेंगे हम वही है ना, जैसे साइक्लोन, वाइल्ड लाइफ फायर, दैट इज अ हजार्ड. बट डिजास्टर एक्चुअली इवेंट हो रहा है और वो बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है, बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, कैजुअलिटी, डैमेजेस एंड ऑल ऑफ द स्टफ, दैट वुड बी कंसिडर एज अ डिजास्टर. वाइल्ड फायर हुई सपोज, तो वो एक हजार्ड हुआ, हो रही है, ठीक है, इकोसिस्टम को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रह रही है, वो बहुत लंबी फैलते जा रही है, uncontrollable, and there are lots of casualty under that wildlife fire, then that would be considered as a disaster. But it first it comes a hazard, then if it will going to be spread and causes lot many what we can say casualty fatals, then it or damage the property or damage the ecosystem in a higher percentage, then it will be considered as a disaster. Okay, now moving towards some definitions. What are the environmental hazards, environmental disaster, and what is a disaster management? Okay, first we'll go with the environmental hazard. Elements of physical environment harmful to the man and causes by the force of extraneous to him. These are classified as natural, geophysical or climate, or man-made, that is industrial or toxics. And moreover, microorganism, as in the last unit we have covered this. Microorganism और genetic engineer cells से जो भी हम लोगों को खतरा होता है, जो भी इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है, उसके लिए भी रेगुलेशन बना के रखे गवर्नमेंट ने, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है. Okay, so what is the definition? Element of the physical environment harmful to the man and caused by the force of extraneous to him. Okay, that is nothing the environmental hazard. Now the disaster, a catastrophic event affecting natural environment often caused by the human activity result in severe disruption to the ecosystem and human life. Sometimes disaster cannot be undone. Okay, we cannot redo this thing. उसे वापस हम अनडू नहीं कर, मतलब जो सिचुएशन पहले थी उसे वापस हम वैसी नहीं बना सकते. कुछ कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं, है ना. अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई और सपोज नेचुरल इवेंट कंसिडर कर लो, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, तो ठीक है, कैजुअलिटी होगी, डिजास्टर होगा, वापस रिकवर हो जाएगा. जैसे उत्तराखंड में है ना, काफी ज्यादा बारिश हुई थी, लैंडस्लाइड हुई थी, तो ऑलमोस्ट उत्तराखंड खत्म ही हो गया था. To get it recovered, that would be difficult, and most of the news channel and newspapers said it is not necessary that it can be reopened till up to the next 10 years or something like that. But what the people do, what the people did, they get recovered from that disaster in a small period of the time. Within 1 to 2 years सब कुछ लगभग वैसा ही हो गया. 4-5 साल हो गए, लगता ही नहीं है कि वहां पे कोई डिजास्टर हुआ है. दैट इज अ वेरी फेमस केस. ओके, सो ऐसा नहीं है कि सारे डिजास्टर
सेम मतलब हमेशा रिकवर नहीं हो सकते, बट कुछ कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं दैट could not be get recover, like volcanic eruption. Okay, volcanic eruption अगर आप देखो तो एक बार वोल्केनो निकल गया, ठीक है, ऑलरेडी एक शहर था और उसके बीचों बीच से वोल्केनिक इरप्शन हो गया एक्सीडेंटली, नॉट जनरली वोल्केनिक इरप्शन होता है तो साइंटिस्ट आजकल इतने ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, इतना स्टडी होता है, इतना मॉनिटरिंग होता है जियोलॉजी डिपार्टमेंट का, ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द प्लेनेट, दे कैन get prior idea, yes, this place would get a volcanic eruption in some period of the time, some duration of the time. So फिर क्या होता है, बट वोल्केनिक इरप्शन अगर एक्सीडेंटली हो जाए, हम पता ही नहीं है किसी को भी, तो वो रिकवर उसे अंडू करना दैट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से क्या होते हैं, माउंटेन हमारे एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब माउंटेन पे थोड़ी ना फिर से अब कोई सिटी बसाओगे, है ना, सो दैट्स द थिंग दैट कैन नॉट बी अंडू, वो वापस जैसी की वैसी नहीं हो सकती। Now, the disaster management, the systematic process of using administrative decision, organization, and operational skill to implement policies and capacity to lessen the impact of the hazard and disaster. Okay, this is nothing but a management. वही है जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के पिलर्स थे, वही है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑपरेशनल स्किल होनी चाहिए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, है ना, और इम्पैक्ट जो जो हुआ है उसको कम से कम कर सके, बस यही सब चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट के डेफिनेशन में। Hope you understood. Now coming towards the next, that is a component of the disaster management. What will be the component? There are several stages that aim to reduce the vulnerability. See, डिजास्टर मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ और उसको वापस फिर हम क्या कहते हैं, वापस वो जैसा क्या वैसा हो गया। डिजास्टर मतलब एक्सट्रीम लेवल का, मैन काइंड का आखिरी चीज है। मतलब वॉर से अगर उससे थोड़ा कम भी किया जाए तो भी चलेगा, वॉर तो भी कंट्रोल मैनर में होती है, डिजास्टर कंट्रोल बहुत कम होते हैं, है ना। जितना वॉर में नुकसान होता है उतना ही डिजास्टर में होता है, कई सारी जाने जाती है, कई सारी फैमिलीज, मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से देखो तो कई सारी फैमिलीज, जैसे कोरोना का एग्जांपल ले लो, दैट इज वन ऑफ द डिजास्टर विच वी हैव सीन। ओके, वी आवर जनरेशन हैव गॉन थ्रू दिस। सो व्हाट हैपेंस, कोरोना में कई सारी फैमिली बैठ गई, है ना, मतलब वो पूरे के पूरे ही रहे ही नहीं इस दुनिया में, तो वो एक डिजास्टर ही था। और उसे मैनेज भी मोस्ट ऑफ द कंट्री में वो ऐसा था भी कि मैनेज करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इतने जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा था, और डेवलपिंग कंट्रीज के तो हाथ में कुछ भी नहीं था, वो कितना ही मैनेज कर पाए। बट बहुत जल्द वैक्सीन आ गई, हमने उसे रिकवर करने की कोशिश की, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन ली गई, फिर वो काफी ज्यादा कंट्रोल में आया, वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट हुआ, उसकी सिवियरिटी भी लेस हो गई। तो वो एक क्या कहेंगे, नेचर ने भी हमारा साथ दिया और ह्यूमैनिटी ने भी एक दूसरे का साथ निभाया, इसीलिए वो काफी ज्यादा जल्दी कंट्रोल हो गया। अदरवाइज अगर यही थोड़ा पुरानी सालों में हुआ होता, लाइक इन बिटवीन 1800 और 17 और 18 सेंचुरीज में हुआ रहता, 16 17 80s में, तो it is almost hardly chances to get recover from that coronavirus, जैसे कि प्लेग हुआ था, इट वाज अ डिजास्टर, और उसे रिकवर नहीं कर पाए थे बहुत, मतलब फिर प्लेग की वैक्सीन निकलने में काफी सालों लग गए, फिर वो फैलता ही जा रहा था, है ना, कट ऑफ हो गए थे, कई सारे लोग तो दुनिया से कट ऑफ ही हो गए थे। ऐसे कई सारे डिजास्टर हुए, नेचुरल डिजास्टर। So, what are the components of the disaster management? First is the mitigation and prevention. Okay, reducing risks of the hazard. For example, land use planning. Okay, जैसे कोई अगर इंडस्ट्री हमें एस्टेब्लिश करनी है,
हम उस जगह पे तो नहीं करेंगे ना कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है या वोल्केनिक इरप्शन होगा या अर्थक्वेक जोन में, जोन जो दिए हुए हैं वहां तो नहीं करेंगे। पहले प्लान करेंगे कि हाँ हमारी इंडस्ट्री को, में अगर एलसी अगर उसका देखा जाए तो 100 साल का होना चाहिए कम से कम, इंडस्ट्री 100 साल चले तो अच्छी जगह पे उसे एस्टेब्लिश की जाए, है ना। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द हजार्ड to the industry. Now the preparedness, planning how to respond, early warning system. If जैसे अभी कई सारी इंडस्ट्री में हम देखते हैं फायर स्पॉट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर स्पॉट होते हैं, है ना, कि अगर कहीं बाय चांस अगर इंडस्ट्री में आग लग जाती है ना, तो हाउ टू रिस्पॉन्ड, वो वहां पे होना चाहिए। इतने इतने डिस्टेंस में प्लान कर लेते कि हाँ फायर एक्सटिंग्विशर इतने इतने डिस्टेंस में होना चाहिए, अगर आग लगती है तो तुरंत इंडस्ट्री से आग बुझानी चाहिए, विद इन अ फ्यू पीरियड ऑफ time. Some people are well trained, well skilled related to their fire extinguisher in the industry as well. Okay, there are some warning signs also, alarms are also there, which are built in industry to get a warning to everyone who are not nearby the fire, away from the fire, they have to evacuate the building, right? So these are the planning should be done. ओके, प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां पे डिजास्टर हो जाए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी था, है ना, वहां पे कई सारी गैसेस ऐसी थी कि जो मिथिल आइसोसाइनेट लीक हुआ था वहां पर, है ना। जब पता है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसी गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट अगर जरा सी भी लीक हुई तो पूरा की पूरा शहर बैठ जाएगा, तो एटलीस्ट वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, है ना। तो रिस्पॉन्ड, यस, फॉर दैट रिस्पॉन्ड ट्रेनिंग शुड बी देयर टू इन द इंडस्ट्री, कि हाँ कैसे इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड किया गया, इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग द डिजास्टर, रेस्क्यू, इमरजेंसी रिलीफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर इंडस्ट्री में आग लगी, दिस इज जनरलाइज एग्जांपल, कि सिर्फ आग लगी है तो अलार्म बजा हम ही भाग रहे, नहीं। help the people. If you have the chances that you can help to the other, then of course you must need to help others. ओके, है ना। तो इस तरीके से रिस्पॉन्ड होना चाहिए, खुद भी पहले बचाव करो, खुद भी निकलो, राइट, लाइक दैट शुड बी ओके। इमरजेंसी रिलीफ होना चाहिए, रेस्क्यू होना चाहिए, recovery and rehabilitation. This is the most important thing. Restoring the community infrastructure thereafter the event. आग लग गई, वापस रिस्टोर करो, रिहेबिलिट करो। इंडस्ट्री में जनरली ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रिकवरी रिहेबिलिटेशन। जैसे मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का बताया था, वो इंडस्ट्री बंद ही हो गई, वापस शुरू ही नहीं हुई, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, किसी के अब तक इंडस्ट्री में, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, किसी के इंडस्ट्री में अब तक कोई भी ऐसा या फिर कहीं अक्रॉस हुए हैं आप लोग डिजास्टर से रिलेटेड, दैट वुड बी ग्रेट इफ यू वुड शेयर सम काइंड ऑफ एग्जांपल। है किसी के पास में कोई? तीन ही लोग हैं, तीनों भी चुप हैं। देखो ये जितना इंटरैक्टिव रहेगा ना उतना ही आपको भी मजा आएगा बताने के लिए, है ना। कोई तो कुछ तो इंसिडेंट हैपन हुआ होगा, नहीं? अभी हमने न्यूज में देखा था एक No, ma'am. केमिकल फैक्ट्री। ओके ओके, दैट वुड बी गुड। आई डोंट वांट टू, यू नो, नो वन शुड गेट और मीट एनी काइंड ऑफ डिजास्टर एट एनी टाइम ऑफ हिज लाइफ, ओके। क्योंकि डिजास्टर मतलब देखा ही है हमने, है ना। तो अभी बीच में एक न्यूज भी आई थी, केमिकल इंडस्ट्री में कुछ तो गैसेस कंटेन लीक हो गया था, है ना, वापस कुछ लोग मर गए थे। कहाँ का था वो? मैं भी भूल गई उसे। ठीक है, let it be. So in this chapter we're going to get an idea related to the natural hazards and industrial hazard. First we'll see the natural hazards. जो भी नैसर्गिक आपदा है ना, उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल हजार्ड डिजास्टर। are naturally occurring, they are naturally occurring physical phenomena such as earthquake, floods, storms, and that have the potential to threaten human life, property, and the environment or ecosystem. Natural disaster occur when these hazards intersect with the vulnerability human community, resulting significant damage. हजार्ड्स तो हो रही है, होते ही है, फ्लड, स्टॉर्म, बट अगर वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाए,
है ना, तो उसे हम डिजास्टर में कंसिडर करते हैं. Okay, the causes of the natural hazards and disaster. These hazards are driven by the internal earth process, atmospheric condition, and increasing human interaction. Like anthropogenic factor, बहुत ज़्यादा urbanization की वजह से climate change हो रहा है, temperature बढ़ रहा है, फिर season fluctuation हो रहा है, storms बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, cyclone देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना? So these are the some anthropogenic factor, and moreover temperature increase होने की वजह से landslide earthquake भी होने के chances हैं. Okay, first we'll see the cause, that is a geological, or you can say endogenic forces driven by the plate tectonic resulting in earthquake, volcanic eruption and tsunami. See, हमने ये चीज देखी है, स्ट्रेटोस्फियर जो है, लिथोस्फियर, मेसोस नहीं, हाँ, लिथोस्फियर हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखे थे टेक्टोनिक प्लेट, है ना. अर्थ में पहले एक ही प्लेट थी, फिर उसके टुकड़े हुए, फिर कॉन्टिनेंट में स्प्लिट हुए, है ना. सो ये जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है, एवरी टाइम द टेक्टोनिक प्लेट गेट मूव्स, बट वी कैन नॉट फील इट बिकॉज इट मूव्स इन very it moves it have to get very क्या कहेंगे वो, बहुत लंबे समय में कम से कम मूव होती है ना. लाइक पर ईयर इट कैन मूव ओनली 1 mm. ओके, सो दिस इज द मूवमेंट बाय द टेक्टोनिक प्लेट्स. बट अभी हम देख रहे हैं कि अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट है, उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल गोइंग टू मीट विद द इन एशियन टेक्टोनिक प्लेट, और इंडिया में बेसिकली वो जुड़ जाएगी, है ना. और इंडिया भी वैसे ही अफ्रीका से मूव होते होते एशियन टेक्टोनिक प्लेट से मीट हुआ, तब जाके हिमालय माउंटेन है वो फॉर्म हुआ है ना. हिमालय रीजन उसी की वजह से फॉर्म हुआ है. और जो अभी केरला और कौन कौन से स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स है ना, अभी ये कोस्टल जोन में आ रहे हैं, और फिर जब वो टेक्टोनिक प्लेट वापस इंडिया से टकराएगी तो वो माउंटेन में बदल जाएंगे. सो इट विल कॉज द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एज वेल एज सुनामी, तीनों एक साथ होंगे. और अभी अर्थक्वेक तो आ ही रहा है, वोल्केनिक इरप्शन अभी अफ्रीका में देखने के लिए मिल ही रहा है ना. बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आप देखो तो आपको समझ में आएगा हाउ दिस मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट विल गोइंग टू कॉज वन ऑफ द डिजास्टर. ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था कि अभी काफी ज्यादा अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उससे रिकवर करने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं. हम पहले ही रिकवर कर जाएंगे कि हाँ, हमें पता रहेगा अब टेक्टोनिक प्लेट टूट गई है, इतने दिन में वो आने वाली है. काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर्स भी है इसको लेकर कि वो कितने फोर्स से अलग होगी, तो कितने दिन में आएगी, कब वो इंडिया से टकराएगी, तो तब तक काफी ज्यादा इवैक्यूएशन हो जाएगा, है ना. तो लाइक दिस वार्निंग विल गोइंग टू गेट कि हाँ, इतने दिन में आने के चांसेस हैं. पूरा कंट्री तो खाली नहीं होगा, बट एटलीस्ट वो स्टेट्स, वो जो रीजन है जहाँ पे एक्चुअली वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेंगे, वहां से तो इवैक्यूएशन हो ही जाएगा, है ना. So like this activity will going to be happen. Hello, आप madam. देख सकते हैं, yes, Yeah, actually, I am yes, Anjan Bhattacharya. When I was in 2006-7 in Indonesia, there is too much, volcano earthquake. So Indonesia yes, is the famous for volcano earthquake. yes, yes, Very frequently they are happening. yes. Yeah, Indonesia हो गया, जापान हो गया, these are the Yeah, continent which are considered under the natural disaster zone. उसमें अर्थक्वेक के जोन्स हैं, 6 जोन है, तो इन्हें रेड मार्क किया गया है. ये जो क्या कहते हैं, ये जो आइलैंड है ना, इन्हें रेड मार्क करके दिया गया है, क्योंकि ये हाईली अर्थक्वेक वहां पे आता ही रहता है. वहां पे बिल्डिंग्स भी yeah, ऐसी, मैनेजमेंट ही ऐसा बनाया है. जापान में तो काफी एडवांस मैनेजमेंट है, अगर आप yeah. देखो तो बिल्डिंग्स ऐसी बना रही है कि छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है तो उनके घर के लोगों को पता ही नहीं होता कि अर्थक्वेक Even आया है. even even tsunami also happens. Tsunami Yeah, also yeah. happen in Indonesia. Tsunami also happens, and they have, highly modified software that अभी तो एक कहीं तो मैंने देखा था, जापान की बात है कि 2 साल पहले उनको पता चल गया था कि इतने इन्फ्लुएंस से सुनामी आने वाला है.
तो उन्होंने पहले ही Yeah. इवैक्यूएट कर दी थी वो जगह, है ना? That, तो काफी yeah, ज्यादा tsunami prone ये जो zone. That actually I am in the SSWJ project in Indonesia. यस There I seen before there was the tsunami. You know that is the tsunami was happening before long time ago. या आई So गॉट द पॉइंट। yeah, that नहीं is वो तो the बहुत yeah यस वो तो पता yeah भी नहीं था, fever. बट अभी हाँ अभी जो छोटी छोटी सुनामी हो रही है ना, तो जापान तो काफी इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो न्यूज में देखें तो हम जापान काफी डेवलप कंट्री है, इसलिए भी मे बी इंडोनेशिया और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, तो थोड़ा ये सब जो पैरामीटर्स हैं उन्हें प्री आइडेंटिफाई करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल, yes ओके yes. Thank you बट madam, thank you. अरे उसमें थैंक यू क्या, यू शेयर द आइडिया दैट वुड बी ग्रेट। ओके नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल कॉजेस। फर्स्ट दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के अंदर से कोर से हो रहे हैं, और एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर हो रही है, ड्रिवन बाय द एटमॉस्फेरिक oceanography or hydrological process including tropical cyclone, floods, droughts and tornadoes। तो ये सारे जो हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ठीक है, जो अर्थ के बाहर से हो रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज ह्यूमन इंड्यूस और वर्सन फैक्टर्स भी कहते हैं इसे, क्योंकि वो नेचुरली तो नहीं है, और वो क्या कहते हैं आदमी क्या कहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ह्यूमन से इंड्यूस हो रहे हैं। और वर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जो डिजास्टर कॉज करते हैं वो काफी वर्स्ट होते हैं। कोई भी उठा के आप एग्जांपल ले लो, कोई भी इवेंट ले लो, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, 19 सेंचुरीज में कोल बर्निंग हो गया था पूरा कार्बन से, लंदन में हुआ था वो चीज, पूरे कार्बन से ढक चुका था लंदन, 6 दिन 10 दिन तक कुछ सामने का आदमी तक नहीं दिख रहा था। तो वहीं से एयर पोल्यूशन को आइडेंटिफाई 18 सेंचुरी में हुआ था, सॉरी वो इवेंट। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, एयर पोल्यूशन से ले लो आप, कोई भी मिटिगे कोई भी आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वो भी एक डिजास्टर है, वो वॉर से रिलेटेड हुआ था, बट देखो उसका कितना इम्पैक्ट आज भी देखने के लिए मिल रहा है ना? सो ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा वर्स होती है, इसलिए इसे वर्सन फैक्टर कहा गया है। हमें हमारी क्या कहते हैं एक तरह से देखना भी तो चाहिए हम हमको ही कितना नुकसान पहुंचा है। That's the thing. So land use changes, deforestation, soil erosion, rapid urbanization and exploitation of the resources increase the frequency and intensity of the event like landslide, flood, climate change, earthquake, volcanic eruption, cyclone, floods। जितने भी natural activity थी वो सिर्फ human induce है ना? बहुत कम ऐसा होता है कि नेचुरली कोई इवेंट हो रहा है ना? हमने ही इतना डिफॉरेस्टेशन, इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है अर्थ को, इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि वो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं और बोलते नहीं नहीं नेचुरली हुआ है, नेचुरली, इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, है ना? डिजास्टर हम ही कर रहे हैं। नाउ द क्लाइमेट चेंज a significant factor in enhancing the severity of meteorological hazards such as heat wave, storms। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है ना? इसे नेचुरल हजार्ड में डाला गया, एक्चुअली इसे तो एंथ्रोपोजेनिक डालना चाहिए। Now the types and occurrence. Okay, there are 6 categories where the natural hazard are classified. Asia Pacific being a major hotspot for this। जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो काफी बड़ा है, और इधर उधर से दोनों तरफ से क्या कहते हैं पानी से घिरा हुआ है एशियन कॉन्टिनेंट, और ऊपर में जाओ तो ठंडा हो जाता है, नीचे में आओ तो गर्म हो जाता है, और इक्वेटर इज क्रॉसिंग थ्रू दिस। तो इसीलिए ये हॉटस्पॉट बना हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। जियोफिजिकल जो पहला कैटेगरी है जियोफिजिकल, उसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल देखो तो फ्लड, डेब्री फ्लो, वेव एक्शन, ये सारे हाइड्रोलॉजिकल ऑकरेंसेस हैं। देन मेट्रोलॉजिकल आप देखो उसमें आती है साइक्लोन, स्टॉर्म एंड टोरेंटो। क्लाइमेटोलॉजिकल देखो तो ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर एंड हीट वेव्स, बहुत सूखा और बहुत गर्म। बायोलॉजिकल देखो तो एपिडेमिक्स और लोकस्ट स्वॉर्म्स, ये सारे बायोलॉजिकल में आता है। पैंडेमिक ये बायोलॉजिकल में हुआ था, कोरोना वाला। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में देखो तो मेट्रोराइट्स, इम्पैक्ट, सोलर फ्लेयर्स,
जो हीट वेव्स जो आती है ना, बाहर से जो आ रहा है, अर्थ प्लैनेट के बाहर से कोई चीज आ रही है, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो मेटेओराइट आते हैं या फिर हीट वेव्स आती है, सोलर फ्लेयर्स जिसे कहा गया है, कैटेगराइज किया गया है, तो तो ये जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, अर्थ के बाहर की है. सो दीज आर द कैटेगरीज, वन बाय वन यू शुड मेमोराइज इट. नाउ द रिसेंट ट्रेंड्स, अभी क्या रिसेंट में क्या हुआ है, मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड स्टॉर्म अकाउंटिंग फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रिपोर्टेड डिजास्टर, है ना. जैसी गर्मी आती है हीट वेव्स की न्यूज आती है, और जैसी बारिश आती है तो फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, हैवी रेनफॉल हो गया, बहुत ही ज्यादा सूखा हो गया है बारिश में. तो ये तो अभी तो रिसेंट एक्टिविटीज देखने के लिए मिल रही है. हाईएस्ट मोर्टेलिटी देखो तो अर्थक्वेक कॉजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ ओवर, कैसे पढ़ेंगे इसे, 75,000 फेटेलिटीज बिटवीन 1998 to 2017. Okay, now developing country vulnerability would up to the 90% of natural disaster and 95% of the related death occur in developing countries only. डेवलप कंट्रीज में नेचुरल डिजास्टर होते भी हैं तो उनको बहुत जल्दी रिकवर कर लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहते हैं. वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ हमारी कंट्री कैसी है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, वाइल्ड फायर हो सकती है, तो चलो उसे मिटिगेट करने के लिए एक हम पूरा प्लान बनाते हैं और पूरा रेस्क्यू का सारी चीजें जो भी जरूरत है वो वहां पे मौजूद करते हैं. That rescue thing is available on site before the disaster is going to be happen in a developing country. That's why they can get recover easily, as well as the intensity of the natural disaster to be happen is less in a developed country as compared to the developing like India. Now the impact factor. Severity of the natural hazard impact is determined by the both natural intensity and human vulnerability. Economic loss. Over the past 40 years, floods hazards alone have causes over $1 trillion losses. है ना. सिर्फ फ्लड्स को अगर देखा जाए तो $1 ट्रिलियन लूज हुआ है. हम तो $5 ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमिक बनने के लिए कह रहे हैं. वो यहाँ तो डॉलर में पिछले 40 साल में इतना लॉस हुआ है. इकोनॉमिक लॉस देखे तो सोशल इम्पैक्ट, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द कैजुअलिटी. हाँ जहाँ तादाद वहां तो बहुत ज्यादा लोग मरने ही वाले हैं, है ना. जहाँ कम रहेंगे वहां पे कम मरेंगे, ये तो सिंपल मैथ्स ही हुआ. और आप देखो पहले एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो अगर फ्लड का, जो हमारी सिंधु सभ्यता जो हम लोग देख रहे हैं ना, हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा से संस्कृत जो हड़प्पा से शुरू हुई और यहाँ ढोलेरा तक आती है ना, वो पूरी एंटायर कम्युनिटी ही पूरी तरीके से खत्म हो गई, है ना. द रीजन येट टू फाइंड बट स्टिल. और कुछ कह रहे हैं कि हाँ वहां पे सिंधु रिवर का ओवर फ्लो हो गया था, या जो भी फ्लड आया, स्टॉर्म आया, समथिंग हैपन, समथिंग नेचुरल डिजास्टर वाज हैपन at that period of the time. That's why the entire community was finished. Okay, that's the researchers are giving the statement like this only. तो क्योंकि वहां पे ज्यादा वो लोग बसे हुए थे, अगर वो देखते कि कहीं हम और बच सकते तो फिर शायद वो ऐसा नहीं होता, है ना. तो लाइक दैट थिंग हैपेंस. इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, poor building norms and land use from land use planning exacerbate damage from the earthquake and the floods. अगर हमको पता है कि हम अर्थक्वेक जोन जो कैटेगराइज किया गया इंडिया में 7 जोन्स है, और सपोज कोई जोन नंबर 4 में आ रहा है, और वहां पे जोन नंबर 4 में सिर्फ आपको 6 to 7 फ्लोर्स तक ही कंस्ट्रक्ट करना है, बट सम हाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग 10 to 12 फ्लोर्स, तो क्या होगा वहां पे. वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पूरा की पूरा, एक छोटा की छोटा भी अर्थक्वेक आया तो गिरने ही वाला है ना. जैसे कि बॉम्बे में हाई राइज बिल्डिंग के लिए परमिशन नहीं है, बट स्टिल बॉम्बे बना रहा है ना. तो एक तरह से करप्शन भी बोल सकते हैं या जो भी है ना. तो उस तरीके से नाउ द नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन.
अगर आप पेड़ पौधे काटोगे तो सॉइल इरोजन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा. These are the things. See, the pollution is also comes under the hazard, and it can causes the what we can say disaster. We'll see in the next lecture. जो इंडस्ट्रियल हजार्ड और डिजास्टर देखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. Now the data related to the natural disaster from 19th century to 2020. Geophysical disaster देखो तो more than 2.4 million deaths happens in this period of time. Around 206 million injured or displaced. Relocate हो जाते हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक आ गया तो वहां से निकलकर कहीं और relocate हो जाते हैं. Like this thing happens. Hydrological disaster देखो over 7 million deaths, mostly the Asia Pacific regions. क्योंकि वहां पे सुनामी ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है, हीट वेव ज्यादा होती है समर टाइम्स में, कोस्टल रीजन में काफी ज्यादा डेथ्स देखने के लिए मिलती है. Then meteorological disaster, storm have causes over 1.4 million deaths and 1.2 billion people to be affected. Somehow they will going to be affected. Property damage, like that. Okay. So future risks, climate related disaster are now on an upward trend, often appearing the cascading or component events like droughts leading to wildlife fire followed by the floods. हमने देखा भी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 ईयर से कितनी वाइल्ड फायर हो रही है, वाइल्ड फायर हो रही है ना, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं. कई सारे जो जानवर है वो मतलब बहुत ज्यादा उनको लॉस हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया में तो काफी देखने के लिए मिला है. अभी काफी ज्यादा वो प्रिपेयर हैं इस समर सीजन के लिए, है ना. और फ्लड्स भी देखने के लिए मिले थे हमें जब हेवी रेनफॉल हुआ था. कर्नाटक केरला ऑलमोस्ट फ्लड में था. आसाम साइड वो तो डूब ही चुका था, है ना. ड्रॉट्स हो रहे हैं काफी ज्यादा. राजस्थान गुजरात यहाँ तो पानी के मतलब पूछना ही नहीं पड़ता है ना. तो कच्छ एरिया आप देख लो, गुजरात का काफी ज्यादा ड्रॉटी एरिया है. तो इस तरीके से ये जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर है वो काफी ज्यादा अपवर्ड हो चुके हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ऑल ऑफ द स्टफ वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ विल सी वन बाय वन, one by one natural disaster and how it would be mitigated. अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको कहा जाए कि हाँ हम देख लो अभी कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं और उसके मिटिगेशन प्लानिंग, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द अर्थक्वेक. Earthquake mitigation reduces casualty and property damage by reinforcing the structure, enforcing strict building codes, and securing indoor environments. The key action include retrofitting older building, bracing non-structural element like bookshelves, anchoring utilities, and developing early warning system to prepare the communities. See, if you are working in any type of industry who is under the earthquake, highly induced earthquake, तो वहां पे आप लोगों की क्या क्या प्रिपेयरनेस होनी चाहिए. आपकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है और थोड़ा सा भी अर्थक्वेक का झटका आने वाला है और वो गिर जाएगी, ऐसा आपको समझ में आया, तो उसे वापस क्या कहें मॉडिफाई करो या फिर रीडेवलप करो, रेट्रोफिट करें, या तो कुछ इस तरीके से, या तो प्रिपेयर रहें कि हाँ अगर अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले जो मेरे कंपनी में मेरे सर के ऊपर फैन चल रहा है वही गिरने वाला है छत से, है ना. तो समहाउ द लोग इट वुड बी गेट रीलोकेटेड, है ना. तो गिरेगा तो एटलीस्ट किसी को नुकसान ना पहुंचे. लाइक दैट रेड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज शुड बी प्रिपेयर. Structural mitigation before earthquake. This is the most important thing. We prepare with this. ऐसा नहीं है कि आपका अर्थक्वेक जोन में आएंगे तभी आप ये सारी मिटिगेशन करोगे, नहीं. कहीं पर भी आप देखो कोई भी इंडस्ट्री अगर बनती है तो उसकी प्लानिंग, एक अच्छा इंजीनियर अगर जो बिल्डिंग बनाता है वो यही सब चीजें देखता है कि आइसोसिमेट्रिक बिल्डिंग होनी चाहिए. आइसोसिमेट्रिक बिल्डिंग को नुकसान होना बहुत चांसेस उसके बहुत कम होते हैं छोटे मोटे अर्थक्वेक से, है ना. आइसोसिमेट्रिक नहीं है, बहुत ही फैंसी सी बिल्डिंग बना दी गई है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना. Seismic retrofitting, strengthening existing vulnerability buildings with engineered earthquake resistant techniques such as reinforcing the foundation, walls, and roofs.
रूफ्स और वॉल्स ऐसी बनाई जाए ना कि जिसके वजह से उनके गिरने के चांसेस बहुत कम हो। अभी कई ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग मॉडिफाइड हुई है ना, कई ज्यादा ऐसी टेक्निक है जो अर्थक्वेक को भी रेजिस्ट कर सकती है। जैसे मैंने जापान में बताया कि बिल्डिंग्स उनके जो फाउंडेशन है वहां पे ही व्हील्स लगे हैं, है ना। स्पेरिकल वो लोग फाउंडेशन बनाते हैं, स्पेरिकल स्पीयर बॉल, बॉल जैसे होती है ना हमारी खेलने वाली गेंद जो बोलते हैं जिसे, उस टाइप के फाउंडेशन होते हैं, ताकि अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है ना तो बिल्डिंग अच्छे से हिल जाती है। पूरी की पूरी एंटायर, जैसे गाड़ी में बैठने के बाद में हमें पता नहीं चलता है ना हम मूव कर रहे हैं करके। अब जब एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं नहीं हम स्टेडी है, तो सेम थिंग वहां पे भी हो रही है। जब वो स्पेरिकल फाउंडेशन पे पूरी एंटायर बिल्डिंग मूव करती है तो पता नहीं चलता है कि हम मूव कर रहे हैं, स्टेडी लगते हैं, क्योंकि सभी मूव कर रहे हैं ना। जैसे अर्थ भी जैसे मूव तो कर रही है पर हमें पता ही नहीं चल रहा है अर्थ मूव कर रही है, सुबह से शाम हो रही है, वो कितना किलोमीटर आगे भाग रही है ना, सन के इर्द गिर्द घूम रही है, पर पता नहीं चलता क्योंकि सब एक साथ घूम रहे हैं। तो ऐसी चीजें वहां पे है। फाउंडेशन को री एनफोर्स करो। कई सारी टेक्निक ऐसी, जब आप बीम बनाते हो तो जो उसकी स्टिरप्स होती है, जो उसका आयरन होता है, उसमें ऐसे हुक्स आने लगे हैं, ऐसी नॉट्स आने लगी है कि जिसके वजह से वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन जाए। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिस वजह से आप बिफोर अर्थक्वेक ही आप प्री प्लान कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से नाउ द बिल्डिंग कोड्स adhering to the updated building codes that require structure to the withstand intense ground shaking। बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो रहा है ग्राउंड, तब भी वो बिल्डिंग जैसी की वैसी रहे, है ना। तो मेरे हिसाब से आईएस कोड है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, इस हिसाब से बिल्डिंग डिजाइन की जाती है। डेड लोड जो भी और लाइव लोड भी होता है। लाइव लोड जो इंसान वहां पे है, जैसे कोई स्कूल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल बिल्डिंग, बिजनेस अब बना रहे हैं, तो डेड लोड क्या क्या हो गया वहां पे, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, एसी, फैंस, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, ऑल ऑफ द स्टफ्स आर डेड लोड। walls, these is also considered as a dead load। फिर लाइव लोड, ह्यूमन, कितने ह्यूमंस बीइंग एक टाइम में वहां कमर्शियल बिल्डिंग में खड़े रहेंगे, दैट वुड बी द लाइव लोड। फिर उसके बाद में आता है विंड लोड, हवा कितनी चल रही है, based on to the meteorological parameters based on and data, they will calculate the wind load कि हाँ इतना होगा। फिर earthquake load, earthquake भी कितना होगा उसके भी फैक्टर्स दिए गए, उस हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, है ना। सो दीज आर द कोड्स गिवन बाय द इंडियन स्टैंडर्ड, उस हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन करना है, डिपेंडिंग ऑन टू द आइडेंटिफाइंग द अर्थक्वेक जोन in your establishment। Now the safe seating, avoid construction or unstable soil, steep slopes or directly over active fault line। जो जियोलॉजी टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, अगर दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिल रही है तो उसे हम लोग फॉल्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए फॉल्ट लाइन के एकदम ऊपर, ऑलरेडी वो दो टेक्टोनिक प्लेट जैसे तैसे जुड़ी हुई है, बिल्डिंग बना दी है, शेकिंग तो कभी ना कभी तो होगी होगी, और उससे आपकी बिल्डिंग गिरने के चांसेस है। तो आइडेंटिफाई दिस थिंग। यूटिलिटी सेफ्टी, इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक शट ऑफ वॉल और गैस एंड वाटर टू प्रिवेंट फायर एंड फ्लडिंग। सो ये सारी चीजें तो अभी भी इंडस्ट्री में है, जैसे कोई केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और वहां से गैस लीक होने वाली है तो ऑटोमेटिक वॉल ही बंद हो जाए उसका, है ना। ऐसे कई सारे सेंसर लगे होते हैं, कई सारे सेंसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, हाईली डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, देखे जाए तो इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। वाटर लीक नहीं होना चाहिए, फायर नहीं लगनी चाहिए, फ्लडिंग्स, ऑल ऑफ द स्टफ्स has been pre-mitigated। Now moving towards the next point, that is a non-structural mitigation। Securing content, anchoring heavy items, fastening tall furniture, bookcases, cabinets to the wall studs। See, ये बहुत जरूरी है ना। इंडस्ट्री में क्या देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर भी होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अम, अम, जैसे कोई बहुत टॉल बिल्डिंग बनाने वाले हैं और उसका रूफ बनने वाला है, तो वो पहले जो रूफ है ना उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्कैफोल्डिंग बनाते हैं,
जिसके ऊपर आरसीसी डलता है और ये सब होता है, नहीं तो वो इमीडिएट फॉल डाउन हो जाएगा। तो उसका फास्टनिंग बहुत अच्छे से करो। और आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो जो आप आइडेंटिफाई करो कि ये चीजें इमीडिएट गिरने वाली है, जैसे बुक केस कैबिनेट हुआ, वो वॉल माउंटेड रहने चाहिए। फैन आपका बहुत अच्छे से फंसा होना चाहिए। एसी आपकी बहुत अच्छी से लगी हुई होनी चाहिए कि छोटे मोटे झटके से वो गिरे ना, है ना। और इमीडिएट रेस्क्यू, आप टेबल के नीचे जा सकें और अच्छी टेबल हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रेजिस्ट करने वाली टेबल हो। जनरली वुडन शेल्फ, वुडन टेबल होती है ना। तो अंडरनीथ आपको उसको जगह भी हो कि अंडरनीथ वहां पे जा सके। तो दीज आर द थिंग। सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग स्ट्रैप्स और टेलीविजन, कंप्यूटर्स एंड द अप्लायंसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अर्थक्वेक के बाद इमीडिएट फायर भी लग सकती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिक्योर करो। सिक्योरिंग हजार्ड, प्लेसिंग हैवी एंड ब्रेकेबल आइटम्स ऑन अ लोअर शेल्फ एंड इंस्टॉलिंग लैचेस ऑन टू द कैबिनेट डोर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल वो लॉक निकले हैं, है ना, ऑटोमेटिक घुमाओ और खुल जाते हैं। बट लैचेस, जो कड़ी हम लोग कहते हैं ना, कुंडी, वो वो वाला लैच बहुत ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू द अदर लॉक्स। अदर लॉक तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये एक एनवायरमेंटल पर्सन बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें करनी। देन कम्युनिटी एंड पर्सनल प्रिपेयरनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंस्टॉलिंग सेंसर दैट डिटेक्ट द सिस्मिक वेव टू प्रोवाइड अ सेकंड टू मिनट फॉर द वार्निंग, है ना। सिस्मिक ऐसा नहीं अर्थक्वेक सडनली आ जाता है, थोड़ा तो वो पहले इंटीमेट देता ही देता है। वो कहते हैं ना, प्रकृति अगर आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है तो वो पहले आपको कुछ ना कुछ तो क्या कहेंगे, अर्ली साइन देगी ही देगी। जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा डिजास्टर बनने वाला है, उसके पहले ही आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल ही रहे हैं, अर्ली वार्निंग दे ही रही है अर्थ, है ना। तो ऐसे कोई सेंसर होने चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्रिपेयरनेस प्लानिंग, डेवलपिंग फैमिली कम्युनिकेशन प्लान्स, असेंबलिंग इमरजेंसी किट, फ्लड वाटर मेडिसिन एंड कंडक्टिंग ड्रिल्स। कई बार ऐसा होता है अर्थक्वेक आ जाता है, देखो कोई भी आप भूकंप के इंसिडेंट उठा लो, वहां पे पानी, मेडिसिन फैसिलिटी प्रॉपर पहुंचनी चाहिए, फूड प्रॉपर पहुंचना चाहिए। So these are the preparedness. Then hazard mapping, identifying high risks vulnerability area through the geological survey and restrict the development. कई सारे जोन्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि वहां पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट ना हो। ठीक है। अभी हमारे बहुत सारे अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर देखेंगे वोल्केनिक एक्टिविटी से। सिमिलर है सिस्मिक एक्टिविटी को, उसकी मिटिगेशन भी सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एक्टिविटी से सिमिलर है। वही होगा, सिर्फ मैग्मा बाहर आएगा, गैसेस और ऐश ऐश इरप्शन होगा, या तो आप कहें स्मोक निकलेगा, है ना, और पर्टिकुलेट मैटर्स निकलेंगे। तो इन सब के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज दी गई है। वोल्केनिक ऐश कैन कॉज अ रूफ कोलैप्स, रेस्पिरेटरी इशू एंड मशीनरी फेल्यूअर्स। तो मिटिगेट करने के लिए बिल्डिंग सील होनी चाहिए, मास्क यूज करो। लावा फ्लो डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग though usually move slowly enough for the evacuation. हाँ, लावा जब निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है ना। तो इवैक्यूएशन के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो उस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए इवैक्यूएशन की। लहर, मड फ्लोज भी कहते हैं, फास्ट मूविंग डिस्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ द वाटर एंड वोल्केनो डेब्रिज। अर्ली वार्निंग सिस्टम, चैनलाइज इंजीनियरिंग एंड लैंड मैनेजमेंट भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट है पायरोकैलिस्टिक फ्लोज, फास्ट मूविंग हॉट गैसेस, रॉक्स, इम्पॉसिबल टू डाइवर्ट। वहां पे मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? ओनली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इज मैपिंग हाई रिस्क एरिया एंड इन्फोर्सिंग इवैक्यूएशन। कोई इंडस्ट्री ऐसे माउंटेन के आसपास बन रही है ना, टूरिस्ट प्लेस बनते हैं, और टूरिज्म इंडस्ट्री देखो आप, माउंटेन के आसपास बन रहे हैं, और वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वॉल्केनिक इरप्शन, और कोई पत्थर वहां से स्लाइड होके गिरने ही वाला है। तो वहां पे जनरली कोई स्पॉट मत रखो कि जहां बहुत सारे लोग जमा हो जाए, नहीं तो वो रॉक के फिसलने की वजह से काफी ज्यादा फेटल हो सकती, कैजुअलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। वोल्केनिक गैसेस, पॉइजनस गैस निकलती है, सॉक्स, नॉक्स, how to mitigate it, public dashboard, air quality monitoring, avoidance of the low lying area where the gas can be accumulated. So these are the two natural disaster. There are many more. In the next class, we will cover the industrial disasters,
industrial hazards and how to mitigate them. Okay, so we'll meet in next Saturday. Till then, see you. Any question? कोई question है? ठीक है, तो next okay, thank you. Next week मिलते हैं. चलो, okay, bye bye, good night.